فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ سابق ڈی جی پی مہندر ریڈی کو تلنگانہ پبلک سروس کمیشن TSPSC کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ گورنر تمل سائی سندرا راجن نے مہندر ریڈی کی تقرری کو منظوری دی۔ معلوم ہوا ہے کہ کچھ دن پہلے تک IAS افسر جناردھن ریڈی TSPSC کے چیئرمین کے عہدے پر برقرار تھے۔ ان کے دور میں TSPSC کے سوالیہ پرچے لیک ہوئے اور کئی امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ جب کانگریس حکومت اقتدار میں آئی تو اس نے نئے کمیشن کی تشکیل کا قدم اٹھایا۔ بیشرو دور حکومت کے چیئرمین سمیت تمام اراکین مستعفی ہو گئے۔ کانگریس حکومت نے حال ہی میں نئے چیئرمین کا تقرر کیا ہے۔ ریٹائرڈ IAS انیتا راجندر، پلوائی رجنی کماری، عامر اللہ خان یادیا اور وائی رام موہن راؤ کو ممبر مقرر کیا گیا ہے۔ 3 دسمبر 1962 کو پیدا ہوئے مہندر ریڈی 1986 بیچ کے IPS آفیسر ہیں۔ مہندر ریڈی نے 36 سال تک بطور IPS خدمات انجام دی۔ مہندر ریڈی نے ٹیکنالوجی کے ساتھ محکمہ پولیس میں انقلابی تبدیلیاں لائیں۔ مہندر ریڈی 31 دسمبر 2022 کو ریٹائر ہوئے۔ ضلع میدک کے BRS کے 4 اراکین اسمبلی سنیتا لکشما ریڈی، پربھاکر ریڈی، مہیپال ریڈی اور منک راؤ کی چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات نے سیاسی حلقوں میں طوفان مچا دیا۔ سیاسی حلقوں میں افواہیں زیر گشت ہیں کہ 4 MLAs بہت جلد پارٹی وفاداری تبدیل کرنے والے ہیں۔ BRS پارٹی نے ان افواہوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان اراکین اسمبلی نے پروٹوکول طریقہ کار پر عمل آوری اور اپنے اپنے حلقوں کی ترقی کے لیے فنڈز کی اجرائی کو یقینی بنانے کے لیے چیف منسٹر سے ملاقات کی تھی۔ پارٹی قیادت کا کہنا ہے کہ میدک BRS کا مضبوط خلا ہے، جہاں سے 10 میں سے 7 اسمبلی حلقوں پر BRS کو کامیابی حاصل ہوئی تھی اور عنقریب منعقد شدنی پارلیمنٹ انتخابات میں حلقہ میدک سے پھر ایک بار BRS کا پرچم لہرائے گا۔ ضلع کے پارٹی قائدین نے بتایا کہ چاروں اراکین اسمبلی کو KCR اور KTR کی قیادت پر مکمل بھروسہ ہے اور پارٹی ان پر بھروسہ ہے اور اس طرح کی منفی خبروں پر رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر ایلیکس ایلس نے سکریٹریٹ پہنچ کر چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں نے لندن میں دریا ٹیمز پروجیکٹ کی طرز پر حیدرآباد میں دریا موسیٰ کے احیاء کا منصوبہ پر تفصیلی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ لندن کے اپنے حالیہ سفر کے دوران انہوں نے دریائے ٹیمز کے انتظام کے طریقہ کار اور ریور فرنٹ پروجیکٹ کی ترقی کا خصوصی طور پر مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے ان کے ساتھ حیدرآباد میں دریا موسیٰ کو اسی ماڈل پر ترقی کرنے کے منصوبوں، پروجیکٹ کا خاکہ، دریا ٹیمز کے خطوط پر ترقی وغیرہ پر تبادلہ خیال کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ دریا کے پانی کو مستحکم رکھتے ہوئے دیگر پروگراموں کے ساتھ ساتھ دریا کے تحفظ کو بھی اولین ترجیح دی جا چکی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ لندن کے اپنے حالیہ سفر میں انہوں نے دریا ٹیمز کے انتظام کے طریقہ کار، ریور فرنٹ پروجیکٹ کی ترقی کا خصوصی ذکر بھی کیا ہے، اور چیف منسٹر نے کہا کہ دریا کے پانی کو مستحکم رکھتے ہوئے دیگر پروگراموں کے ساتھ دریا کے تحفظ کو ابھی اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ دریا موسیٰ کی ترقی میں ماحولیات کا تحفظ کیا جائے گا اور قدرتی وسائل کو نقصان پہنچائے بغیر ترقی کے عمل کو آگے بڑھایا جائے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے چیف منسٹر کے وژن اور دریائے طاس کی ترقی پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایلس نے کہا کہ وہ ریاست میں اسکل ڈیولپمنٹ اور ایکو ٹورزم میں تعاون کریں گے۔ اس میٹنگ میں چیف سیکرٹری شانتی کماری، چیف منسٹر کے اسپیشل سیکرٹری اجیت ریڈی، ڈپٹی ہائی کمشنر گیرتھ وین اوون اور دیگر نے شرکت کی۔
तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना की असल अपोजिशन जमात बीआरएस के रुकन असम्बली पदी कौशिक रेड्डी पर बिलावास्ता तौर पर तनकीद की। उन्होंने नेशनल वोटर्स डे के मौके पर हैदराबाद के JNTU ऑडिटोरियम में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए रियासत में हाल ही में हुए असम्बली इंतखाबात का हवाला देते हुए कहा है कि एक उम्मीदवार ने धमकी दी थी कि अगर अवाम उसको वोट नहीं देंगे तो वो खुदकुशी कर लेगा और ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि कोई भी राय दहिंदों पर जबरदस्ती ना करे और उन्होंने कहा है कि जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए अच्छे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। वाज़ेह है कि हुजूराबाद के बीआरएस उम्मीदवार कौशिक रेड्डी ने इंतखाबात की मुहिम के दौरान अवाम से जज्बाती अपील करते हुए कहा था कि उनको अगर अवाम ने वोट नहीं दिया तो वो खुदकुशी कर लेंगे। कमलापुर पुलिस ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की थी। तेलंगाना भर में 14वां नेशनल वोटर डे मनाया गया। इंतखाबी अमल में राय दहिंदों की शिरकत के बारे में बेदारी में इजाफे के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए। इस मौके पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद के JNTU ऑडिटोरियम में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने रियासत में बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रियासत में वोटिंग का अमल मिसाली रहा। उन्होंने कहा कि वोट डालने के लिए उंगली पर सियाही लगाना हर एक के लिए फख्र की बात होनी चाहिए। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने हक रायदही का भरपूर इस्तेमाल करें। गवर्नर ने कहा कि जमहूरियत में वोट का हक अवाम के हाथ में सबसे ताकतवर हथियार है और अच्छे लीडरों के इंतखाब को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी अवाम के हाथ में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो आने वाले इंतखाबात में जोश व खरोश से हिस्सा लें। बोधन के आंचनपल्ली के उमर नामी शख्स ने अपने बेटे मोहम्मद सूफियान, जिनकी उम्र 14 साल है, उनकी गुमशुदगी की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बताया गया है कि वो 22 जनवरी को घर से स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं पहुंचे और काफ़ी तलाश के बाद सूफियान के बैग और साइकिल एक स्टेशन के पास से मिले हैं और उनके वालिद को शक है कि वो सूफियान सिकंदराबाद स्टेशन गए होंगे। इसलिए अगर सूफियान किसी को नजर आ जाएं तो उनके वालिद को या फिर पुलिस स्टेशन में इसकी इत्तला दें। भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं आचनपल्ली बोधन का रहने वाला हूँ। मेरा 14 साल का लड़का है, उसका नाम मोहम्मद सुफियान है। वो जो है सो 22 तारीख के दिन सुबह में घर से स्कूल के लिए निकला, मगर वो स्कूल गया नहीं। बहुत ढूंढने पर हमको शाम में 10 बजे के टाइम रेलवे स्टेशन के पास उसका बैग और उसकी साइकिल मिली हमको, और हमको ऐसी इत्तला है कि वो सिकंदराबाद गया ट्रेन से। तो इसलिए मेरी गुजारिश है भाई, जिस किसी को ये मेरा बच्चा नज़र आ गया वो हमको कांटेक्ट करे। हमारा नंबर है 9951092510 9848404303। और भाई मेरी पुलिस से और हुकूमत से गुजारिश है, मुझे एक ही बेटा है और मैं जो है सो कंप्लेंट दिया हूँ, और उनसे भी मेरी गुजारिश है, मुझे एक ही बेटा है साहब, ज़रा अगर आप जो है सो थोड़ा दिल लगा कर ये मेहनत करेंगे तो मेरे को मेरा बच्चा मिल जाएगा। शुक्रिया। बोधन में वोटर्स डे के मौके पर शानदार रैली निकाली गई। स्टूडेंट्स ने मिलकर रैली निकाली। बोधन RDO राजा गौड़ के क़यादत में ये रैली निकाली गई। इसमें बोधन के ACP किरण कुमार और म्यूनसिपल कमिश्नर क़मर अहमद, बोधन MRO और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट ने मिलकर स्टूडेंट के साथ रैली निकाली। దేశ ప్రజాస్వామ్య సాంప్రదాయాలను స్వేచ్ఛాయుత ఈరోజు జాతీయ ఓటర్ దినోత్సవం సందర్భంగా యువ ఓటర్లలో చైతన్యం నింపేందుకు ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమం అనేది ఒక బృహత్తర కార్యక్రమంగా జరగాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు, జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు RDO బోధన్ గారు, MRO బోధన్ గారు, అలాగే మున్సిపల్ కమిషనర్, పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరూ ఇక్కడ వివిధ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ మేనేజ్మెంట్స్ సహకారంతో విద్యార్థులతో ఈరోజు ఇక్కడ ఒక ర్యాలీ కార్యక్రమము, అలాగే మానవహారము, ఒక అవేర్నెస్ గ్యాదరింగ్ అనేది జరపడం జరిగింది. దీంట్లో మన గౌరవ RDO గారు యువ ఓటర్లలో చైతన్యం రావడం కోసము ఈ పిలుపునిచ్చారు. అందరూ కూడా ఈ ఎలక్షన్ ప్రక్రియకి అందరూ సహకరించి ఎక్కువ శాతం ఎవరైతే
అర్హత పొందుతారో ఆ యువకులందరూ కూడా ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. ఈరోజు ఈ ర్యాలీకి మానవహారంకి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసిన వీరయ్యకి, బోధన్ పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బందికి నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO चीफ समीर वी कामत ने एक बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि रवां साल मार्च तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बरामदगी का अमल शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान के दिफाई शोबे में पूरी तरह खुद कफील बनने की कोशिश में ये एक बहुत बड़ी हुसूलियाबी होगी। DRDO चीफ समीर कामत ने खबरसा एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि DRDO आइंदा 10 दिन में ही इन मिसाइलों के ग्राउंड सिस्टम्स की बरामदगी शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, DRDO ने जिन 307 ATAGS बंदूकों को तैयार किया है और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत फौज और टाटा एडवांस सिस्टम जैसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां कर रही हैं, उनके लिए भी इस माली साल के आखिर तक बैरून मुल्क से ऑर्डर आ सकते हैं। DRDO चेयरमैन समीर कामत के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फिलिपाइन के अलावा दीगर ममालिक ने भी दिलचस्पी दिखाई है। इस मिसाइल की बरामदगी के लिए तैयार ATAGS के सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं। मेरा अंदाजा है कि 31 मार्च से कबल ही इसके लिए ऑर्डर दिया जाएगा। कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सफर आज आसाम में खत्म हो गया। ये यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी और नागालैंड के बाद आसाम में दाखिल हुई, फिर अरुणाचल प्रदेश पहुंची और दोबारा आसाम में दाखिल हुई। इसके बाद मेघालय पहुंची और तीसरी बार आसाम में कदम रखा। अब इस यात्रा ने आसाम से मगरबी बंगाल में कदम रख दिया है। इसके साथ ही यात्रा का आसाम में सफर अब खत्म हो गया है। इसके अलावा मगरबी बंगाल में कदम रखने के बाद कोच बिहार इलाके में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि वो यहाँ अवाम की बात सुनने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हम बंगाल पहुँच गए, हम यहाँ लोगों की बात सुनने आए हैं और ये बताने आए हैं कि हम उनके साथ हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी RSS नफरत, तशद्दुद और नाइंसाफ़ी को फ़रोग़ दे रहे, हम उनके खिलाफ हैं। अपोजिशन इत्तेहाद नाइंसाफ़ी से एक साथ मिलकर लड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU का अक़लियती दर्जा बहाल करने वाले 1981 के तरमीम शुदा एक्ट पर कायम न रहने के मरकज़ी हुकूमत के मौक़िफ़ पर हैरत का इजहार किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की क़ियादत वाली 7 जजों की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या उन्होंने हुकूमत 1981 में पार्लियामेंट की तरफ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में की गई तरमीम को कबूल किया है। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं। बेंच ने मेहता से पूछा, ये पार्लियामेंट की तरमीम है, क्या हुकूमत उसे कबूल कर रही है? मेहता ने जवाब दिया, मैं हुकूमत मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। सॉलिसिटर जनरल के जवाब से हैरान होकर बेंच ने पूछा, आप पार्लियामेंट की तरमीम को कैसे कबूल नहीं कर सकते? पार्लियामेंट हिंदुस्तानी यूनियन के तहत एक अबदी नाकाबिल तनसीख इदारा है। अगरचे कोई भी हुकूमत यूनियन ऑफ इंडिया के मुद्दे की नुमाइंदगी करती हो, पार्लियामेंट का मुद्दा अबदी, नाकाबिल तक़सीम और नाकाबिल तनसीख है। सऊदी हुकूमत ने तारीख में पहली बार मुल्क में शराब खाना खोलने की तैयारियां शुरू कर दी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने दारुल हुकूमत रियाज में मुल्क का पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो खुसूसी तौर पर गैर मुस्लिम सिफारतकारों के लिए खोला जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन मंसूबों से वाकिफ एक जरिए ने बताया कि ये स्टोर आइंदा चंद हफ्तों में खुलने की उम्मीद है, जो रियाज के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में वाक़ होगा। इसके अलावा सार्फिन को शराब की खरीदारी के लिए मोबाइल ऐप के जरिए इंदराज कराना होगा और वजारत खारिजा से क्लियरेंस कोड हासिल करना होगा। सार्फिन को उनके माहाना कोटे के मुताबिक शराब फराहम की जाएगी। ज़राए ने बताया कि इस स्टोर को सिर्फ गैर मुस्लिमों तक सख्ती से महदूद रखा जाएगा। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि आया सिफारतकारों के अलावा दीगर गैर मुस्लिम तारिकीन वतन को स्टोर तक रसाई हासिल होगी या नहीं। सऊदी हुकूमत ने इस खबर पर तबसरा करने से भी इनकार कर दिया और दरख्वास्त का जवाब भी नहीं दिया।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।